حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد سلام میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آج عوام کے اندر ایک بہت عام بات مشہور ہے، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو یا کہ کوئی سٹی کا رہنے والا، کوئی قصبے کا رہنے والا، زیادہ تر لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات مقدسہ کو اوپر والا زیادہ تر لوگ کہتے اور استعمال کرتے ہیں جملہ۔ تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دے تاکہ عوام کے لیے یہ بات بہتر سمجھ میں آ جائے کہ اوپر والا کہنا کیا درست ہے یا نہیں۔ کرم ہوگا نمازی شوی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے، جی تو بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے، اور میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ یہ باتیں عوام کے اندر پہنچیں تاکہ عوام ان باتوں سے پرہیز کر سکیں۔ بے شک۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بجائے اس کو اوپر والا بولتے ہیں، جی یہ نہایت غلط بات ہے۔ جی بلکہ اگر یہ عقیدہ رکھ کر لفظ بولے، جی اگر انسان یہ عقیدہ رکھ کر یہ لفظ بولے جی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، جی تو یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے جی تو یہ کفر ہے، اللہ۔ کیونکہ اللہ کی ذات اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں، جی تمام سمتوں، ہر مکان ہر زمان سے پاک ہے، جی برتر وہ بالا ہے۔ جی ان سب جہالت یعنی سمتوں، پورب پچھم اتر دکھن، اوپر نیچے داہنے بائیں آگے پیچھے، زمان و مکان کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں بولا جا سکتا کہ وہ اوپر ہے یا نیچے ہے، جی پورب میں ہے یا پچھم میں ہے، جی کیونکہ جب اس نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا تھا جی وہ تب بھی تھا، اللہ۔ کہاں تھا اور کیا تھا، اس کی حقیقت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جی بے شک۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جی تو اس سے یہ پوچھا جائے جی کہ جب اس نے عرش کو پیدا نہیں کیا تھا تو وہ کہاں تھا؟ اللہ، بے شک بے شک۔ جب اللہ نے عرش نہیں پیدا کیا، بھائی اللہ ہی نے عرش بنایا، جی تو جب اللہ تھا تبھی تو عرش بنایا، جی اور جب عرش نہیں تھا تو پھر اللہ کہاں تھا؟ جی بے شک۔ کیا تو اصلاح ہے۔ پیدا نہیں کیا تھا تو وہ کہاں تھا؟ یوں ہی اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے جی تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ اوپر کو پیدا کرنے سے پہلے وہ کہاں تھا؟ جی جب اوپر کو اس نے زمین آسمان وغیرہ جب نہیں بنایا تھا جی تب وہ کہاں تھا؟ جی تو اس سے یہ سوال کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اوپر والا اس خیال سے کہے کہ وہ سب سے بلند و بالا ہے جی اور اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہے، جی تو یہ کفر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ بولنا صحیح نہیں ماشاء جن سے کفر کا شبہ ہو، جی اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا بہرحال منع ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ جی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہنے کے بجائے صرف مالک کہتے ہیں جی حق ہے۔ کہ مالک نے جو چاہا سو تو کیا۔ ایسا ہو جائے گا، جی یا مالک جو کرے گا وہ ہوگا، جی وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اچھا اور اسلامی طریقہ نہیں۔ جی سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ سیدھی اور سچی اور اچھی بات یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی کہا جائے، ماشاء اللہ۔ کیونکہ اس کا نام لینا عبادت ہے، جی اور اس کا ذکر کرنا ہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور مسلمان کی پہچان ہے۔ جی یعنی یوں کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور اللہ جو کرے گا وہ ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اس اللہ۔ کے علاوہ اوپر والا اور مالک یہ ساری چیز۔ جی اچھا، اب بول چال میں کفری کلمات کا استعمال، جی لوگ آپس میں بات چیت کرتے کرتے کفری کلمات کی استعمال کر لیتے ہیں، جی اور پتہ نہیں چلتا کہ کہاں انہوں نے کفر کر لیا۔ جی حق ہے۔ عام لوگ بات چیت میں کلمات کفر بول کر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، جی اور خواہ مخواہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جی اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، جی کیونکہ ہر گناہ کی بخشش ہے، جی لیکن اگر کفر بک کر ایمان کھو دیا جی تو بخشش و مغفرت
नहीं होगी, और जन्नत में जाने की कोई सूरत नहीं, अल्लाह, बल्कि सब दिन जहन्नम में जलना लाजमी है। जी, हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम को आदमी मोमिन होगा जी, तो सवेरे को काफिर, अल्लाह और अकबर, सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर। जी, ये बात किसी और ने नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कलिमाते कुफ्र कितने हैं जी, और किस किस बात से कुफ्र लाजिम आता है, जी, उसकी तफसील बयान करना दुश्वार है, जी, लेकिन हम अपने अवाम भाइयों के लिए जी, चंद हिदायत बयान कर देते हैं। जी, इंशाअल्लाह ईमान सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, नंबर 1, आप बाअदब हो जाइए। जी, अल्लाह ताला, उसके रसूल, फरिश्ते, जी, खाने काबा, जी, मसाजिद, जी, कुरान करीम, जी, दीनी किताबें, बुजुर्गान दीन, जी, उलमाए किराम, वालिदैन, वालिदैन में यह मत समझना सिर्फ बाप, जी, वालिदैन में माँ बाप दोनों हैं, जी, इन सब का अदब, ताजीम और मोहब्बत दिल में बिठा लीजिए। जी, बाअदब इंसान का दिल एक खरे खोटे को परखने की तराजू हो जाता है जी, कि ना खुद उसके मुंह से गलत बात निकलती है जी, और ना कोई बके तो उसको नागवार गुजरती है। जी, इसलिए अनपढ़ बाअदब अच्छा है, जी, अनपढ़ बाअदब अच्छा है, यानी जी, अनपढ़ हो जी, लेकिन बाअदब हो जी, तो अच्छा है। और माशाअल्लाह, पढ़े लिखे बेअदब से खुदा ताला फरमाता है वमन युअज्जिम जी, शाइरल्लाहि जी, फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जी, जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे जी, तो ये दिलों की परहेजगारी है। माशाअल्लाह, जो अल्लाह माशाअल्लाह, की निशानियों की ताजीम करे जी, तो ये दिलों की परहेजगारी है। जी, अब आइए नंबर 2, हंसी मजाक, जी, तफरीह, वो दिल लगी की आदत मत बनाइए, जी, और कभी हो तो इसमें दीनी मजहबी बातों को मत लाइए। जी, खुदाए ताला इसकी जात, उसकी जात व सिफात, अंबियाई कराम, मलाइका, जन्नत व दोजख, जी, अजाब व सवाब, नमाज व रोजा वगैरह अहकाम शरा का जिक्र हंसी तफरीह में कभी ना लाइए, जी, वरना ईमान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जी, शायर इलाहिया के साथ जी, मजाक वो इस तरह कुफ्र है। अल्लाहु अकबर, बाज लोग इस किस्म की बातें सबको खुश करने के लिए बोल देते हैं, जी, जिनका बोलना बर्जा व खुशी सुनना कुफ्र है। जी, ऐसी बातें करने वालों से दूर रहना जरूरी है। जी, मसलन सब धर्म समान जी, हैं, मसलन सब धर्म समान हैं, जी, खिदमत खल्क ही धर्म है, देश पहले है धर्म बाद में, अल्लाह, हम पहले फला मुल्क के वासी हैं और मुसलमान बाद में, राम रहीम दोनों एक हैं, नाउज़ुबिल्लाह वैद मिन ज़ालिक, कुरान में कोई फर्क नहीं, मस्जिद व मंदिर दोनों खुदा के घर हैं या दोनों अल्लाह, जगह खुदा मिलता है, नमाज पढ़ना बेकार आदमियों का काम है, रोजा रोजा वो रखे जिसको खाना ना मिले, जी, नमाज पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर है, हमने बहुत पढ़ ली कुछ नहीं होता है। ये सब कलिमात खालिसे कुफ्र गैर इस्लामी काफिरों की बोलियां हैं, जी, जिनको बोलने से आदमी काफिर इस्लाम से खारिज हो जाता है। जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिनको बोलने से आदमी काफिर हो जाता और है, इस्लाम से खारिज खारिज हो जाता है। सियासी लोग इस किस्म की बातें गैर मुस्लिमों को खुश करने और उनके वोट लेने के लिए बकते हैं, जी, हालांकि देखा यह गया है जी, कि वो उनसे खुश भी नहीं होते जी, और अपने ही धर्म वालों को उमूमन वोट देते हैं। जी, इस तरह उन नेताओं को न दुनिया मिलती है जी, न दीन, जी, और जिन गैर मुस्लिमों के वोट आपको मिलना है जी, वो अपना दीन वो ईमान बचा कर भी मिल सकते हैं। जी, फिर ये कि चंद रोज की दुनिया इख्तिदार, नोटों और वोटों के खातिर, जी, वोटों के खातिर क्या अपना ईमान बेचा जाएगा? मुसलमानों में जो नए नए फिरके राइज हुए हैं जी, उनसे दूर रहना निहायत जरूरी है। जी, ये ईमान वो अकीदे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी, मजहब अहले सुन्नत के बुजुर्गों की रूश पर कायम रहना जी, ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए निहायत लाजिम है, जी, और मजहब अहले सुन्नत की सही तर्जुमानी जी,
इस दौर में आला हजरत मौलाना अहमद रजा खां जी बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाई है, जी उनकी तालीमात खालिसे इस्लाम है। जी फिल्मी गानों में कुफरियात, अल्लाह लोग फिल्मी गाने सुनते हैं जी और उस पर ध्यान नहीं देते। जी अब आओ जरा देखते हैं आजकल जी हिंदुस्तान में फिल्मी मनाजिर जी और उनके गानों के जरिए भी मुसलमानों को काफिर बनाने और ईमान और अकीदे को तबाह करने की मुनज़्ज़िम साजिश चल रही है। जी फिल्म की मजीद उरियों और उसकी लज्जत और गानों के लुत्फ अंदोजी के सहारे जी ऐसे ऐसे कड़वे घूंट मुस्लिम नस्लों के घाटी से उतारे जा रहे हैं जी जिनसे कभी वो बहुत दूर भागते थे, जी और मुसलमान उन्हें बड़ी आसानी से अब हजम करते चले जा रहे हैं। अल्लाह बल्कि सही बात यह है जी कि आजकल फिल्मों टेलीविजनों के जरिए जी काफिर अपने धर्मों का प्रचार कर रहे हैं। जी जेल में हम चंद फिल्मी गानों के वो अशआर कलमबंद कर रहे हैं जी जिनका कुफ्र होना इतना जाहिर है जी कि उसके लिए किसी आलिम या मौलाना साहब से पूछने की कतई जरूरत नहीं है, जी बल्कि हर आदमी भी जान सकता है कि ये खालिस काफिराना बकवासें हैं। जी जैसे कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, अल्लाह ये गाने हैं जो मैं बताने लगा हूं। जी खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। और अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, और फिर रब ने मुझ पर सितम किया क्या किया है। जी रब ने मुझ पर सितम क्या किया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। इन गानों का जायजा लीजिए जी और देखिए अल्लाह जल्ले शानहू के बारे में ये अकीदा रखना कि वो आसमान से जब देखता होगा। हालांकि मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शय को हमेशा से देखता है और हमेशा देखेगा। जी खुदा ताला के बारे में ये बकवास कि मेरे महबूब के बनाने वाले के बारे में वो सोचता होगा, हालांकि हर शय का बनाने वाला सिर्फ खुदा ताला ही है। और उस परवरदिगार आलम के बारे में ये बकना कि वो सोचता होगा, हालांकि उसका इल्म सोचने से पाक है। जी ये सब खुले कुफ्र हैं। जी इसी तरह दूसरे गाने में खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, जी कितना बड़ा कुफ्र है। जी इस्लाम से मजाक और कुरान करीम से ठट्ठा किया गया है, जी जिसके कुफ्र सरीहा होने में जाहिल मुसलमान को भी शक नहीं है। जी तीसरे गाने में परवरदिगार आलम को सितमगर बताना, उससे शिकवा करना और उसकी नाशुक्री करना कि उसने सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, ये सब वो कुफरियात हैं जो कितने मुसलमानों से बुलवा कर कहलवा कर गानों के जरिए उनके ईमान खराब कर दिए हैं और इस्लाम वो हुदूद से बाहर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे भाइयों, मैं आज अपनी गुफ्तगू यही स्टॉप करता हूं, मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, नौजवानों, साथियों, मेरी माँ और बहनों, ऐसे गाने को ना सुना करो जहां से ईमान खत्म हो जाए, जहां से ईमान पर डाका डाला जाए। और तंजीमें तो चल ही रही हैं कि हमारे ईमान को मिटाया जाए, हमारे कुरान को मिटाया जाए, मजहब इस्लाम को मिटाया जाए, इस्लाम के कानून को मिटाया जाए, मगर मुसलमान उस कौम का नाम नहीं है कि मुसलमान अपने चंद रोज आसाइश और जेबाइश के लिए मुसलमान अपने दीन और धर्म को मिटा दे। मुसलमान तो उस दीन का नाम है कि कभी मुसलमानों ने यह कह दिया था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान उस जात का नाम है कि मुसलमान मर जाएगा, कट जाएगा, मिट जाएगा, मगर उससे जब भी सवाल किया जाएगा तो एक ही नारा उसके जबान पर होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरात, मैं कहना चाहूंगा, मेरा वीडियो बनाने का यह मकसद नहीं है कि आप लोग वीडियो को देखकर ये समझें कि ये वाहवाही के लिए है या इसमें बड़ा लुत्फ अंदोजी बात कही गई है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप हजरात जो बात नहीं जानते हैं वो वीडियो देख करके अपने ईमान और अकायद की हिफाजत फरमाएं। रब्बे काबा की बारगाह में गुस्से गुजार हूं कि मालिको मौला
ہم تمامی حضرات کو اپنے قریب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے ہم لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ شریعت مصطفیٰ پر گامزن رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں سرون ساون قصدن لفظن مانن ہوئی ہوں، مالک و مولا تمام انبیاء و رسول کو، بزرگان دین کو جو ہے گواہ بنا کر کے مالک و مولا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔